So hello everyone, good morning. So today we will start the next exercise 2.5 of class 9th, right? So before starting 2.5 you must learn and read these particular identities. These identities are very common because some of you have already read in class all these means identities in class 8. Means a plus b whole square which is equals to a square plus b square plus 2ab, a minus b whole square is equals to a square plus b square minus 2ab, a square minus b square which is equals to a plus b or a minus b. Likewise, I have written 10 identities. Clear? So you have to learn them before doing your questions, which is very important. If you don't learn or you are unable to learn these identities, so it is very common you are unable to solve questions related to these particular identities. Clear? So now I am solving questions one by one and taking identities according to the question. So first I am solving the first question. Likewise, find the product. Right? Suppose we have two terms like 2x plus 4 and 2x plus 4. Right? So because the both brackets are same and because there is no sign in between them, that means we have a sign of product. So this and this both are the same bracket. So this can be written as 2x plus 4 whole square. Now compare this. Which identities it belongs? First one, a plus b whole square. So what is the a plus b whole square? अगर मैं इस टर्म को a ले लेता हूँ like 2x को a और b को 4, तो a plus b whole square क्या होता है? This is a square plus b square plus 2ab. आपको बेसिकली करना है क्या है? आपको सिर्फ a और b की वैल्यू को ही पुट करना है. That's it. Clear? So according to this, आप सिंपल लिख सकते हैं इसके सामने कि by using identity. Clear? A plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab. So on the place of a, what we have? 2x. So this is 2x whole square plus 4 whole square plus 2 into a के place पर 2x और b के place पर 4. So जब हम स्क्वायर करेंगे that means this is a whole square, यानी कि 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है. 2 स्क्वायर कितना होता है? This is 4 और x का स्क्वायर सिंपल x स्क्वायर. 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16. 2 2 is 4. 4 is 16x. So this is the product of these particular questions and this is your answer. Clear? Any problem? I don't think so भी problem आई होगी आपको. Likewise, I am taking one more question. Likewise, we have a question 5x minus 4 whole square. यानी कि इस बार हमारे पास ये वाला स्टेप गिवन है सिंपल. और अभी क्या करना है इसको? इस बार हमें इसको एक्सपेंड करना है. यानी कि अगर हम फाइंड द प्रोडक्ट वो इस फॉर्म में आएगा और इस फॉर्म में आए तो क्या आएगा वर्ड? एक्सपेंड. राइट? 5x minus 4 whole square is equals to. So clearly we can observe this is your a and this is your b. Clear? So a minus b whole square. आप सिंपल लिख सकते हैं by using a minus b whole square which is equals to a square plus b square minus 2ab. Again you have to put the value of a, b. That's it in your particular identity. So what is the place of a? We have 5x whole square plus 4 whole square minus 2 multiply by 5x into 4. यानी कि a के place पर 5x और b के place पर 4. So here square of 5. This is 25. X square as it is. 4 का square 16. 5 to the 10 4 is 40x. So this is your answer. I hope so. It is very easy. So this question is based on the second identity. Now I am solving the next part or next question which is based on your third identity. So I am taking one more example. Suppose we have a question like 9x minus 4 or 9x plus 4. So this time we have the right side or right hand side of the identity which I have written here.
a square minus b square equals to a plus b or a minus b, because the both bracket have the same values but in between the sign is different. एक जगह पर नेगेटिव और एक जगह पर पॉजिटिव. तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी a को रिप्रेजेंट कर रही है, ये b को, और यहाँ पर भी a और b. तो a माइनस b और a प्लस b किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो इसके सामने आप क्या लिख सकते हैं? by using a minus b, a plus b is equals to a square minus b square. So what is a? 9x whole square minus 4 whole square. So 9 का square कितना होता है? 81. x square minus 4 का square 16. So this is your answer. Clear? Now I'm solving one more part, which is based on your third identity or fourth identity. This one, x plus a or x plus b. Suppose we have taken option, likewise 3x plus 4 or 3x plus 6. Right? So in this bracket, in these two brackets, what we are observing, the first term is common, 3x or 3x, and the next two term is different. तो क्लियरली वो x प्लस a और x प्लस b आइडेंटिटी पे जा रहा है, बिकॉज इन दोनों ब्रैकेट में x तो कॉमन है और a और b आपका कैसा है? डिफरेंट. तो x प्लस a x प्लस b किसके इक्वल होता है? x स्क्वायर. यानी कि बाय यूजिंग x प्लस a और x प्लस b which is equals to x square plus a plus b x plus a, right? So on the place of x, what we have? 3x. Clear? तो ये कितना हो जाएगा? 3x whole square plus bracket में a. What is a? 4. This one is a and plus 6, यानी ये b है आपका. x के प्लेस पर कितना आएगा? 3x और प्लस ab, यानी कि 4 multiply by 6. 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9. x square plus 4 plus 6 plus 4 10. 3 is a 30x, right? And 6 4s are 24. So this is your answer, 9x square plus 30x plus 64. So in this way you can easily solve your question number 1. It is very simple. I am not taking questions from your book because of you have to solve all the questions by yourself. Getting? I am just taking some examples from my side. So everyone pause the video and note it down. Thank you. So now I am taking two more questions which is based on particular identities. So I am writing here two questions. The first is evaluate. I am taking 3 questions from my side, and this one is another question which is same as which I have solved in my first video. So this is find the product of this type, x minus a or x minus 12. तो अब आप कहेंगे सर इस तरह की कोई आइडेंटिटी हमारे पास है ही नहीं. करेक्ट. सो x minus 9 और x minus 12, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x plus minus 9 और x plus minus 12. Are you getting? मैं क्या करना चाह रहा हूं? Because plus minus minus ही होता है, plus minus minus ही होता है. Getting? So now compare this question. Now leave this question. सिर्फ इसको देखना है आपको. ये कौन सी आइडेंटिटी को रिलेट करता है? आपकी फोर्थ आइडेंटिटी को, x plus a और x plus b. So on the place of x, what we have? X. On the place of a, we have minus 9, and on the place of b, we have minus 12. Getting? Now it is simple. So you have to just write the properties by using the property x plus a or x plus b. Right? तो ये कितना हो जाएगा? x square. यानी कि सिंपल x के प्लेस पर तो x है, तो इसलिए x square हो जाएगा. Now then a plus b, यानी कि minus 9 plus minus 12, then x, यानी कि x के प्लेस पर तो x ही है, और प्लस ab, यानी कि minus 9 multiply by minus 12. Now solve it. So it is x square plus minus 9 or minus 12. This is minus 21 x plus, because minus minus already plus होता है, clear, and plus into plus plus ही होता है, तो 12 9s are 108. So this is, now multiply this negative plus positive sign in this bracket. So plus minus minus. So your answer would be x square minus 21x plus 108.
गेटिंग? सो दिस इज योर आंसर. सिंपल. आई होप कि इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन और हैं वो भी आप इजीली कर पाएंगे. सो यू हैव टू जस्ट मेक अ स्मॉल चेंज इन पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चंस. लाइकवाइज मैंने x माइनस 9 को मैंने क्या लिखा, x प्लस माइनस 9. x माइनस 12 को मैंने क्या लिखा, x प्लस ब्रैकेट में माइनस 12. सो मीन्स मेरा टारगेट क्या था कि टू मेक द वैल्यू ऑफ a एंड b. क्लियर? जब a और b आ जाएगा तो सिंपली आप एडिटिव वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल easily find the answer. Fine. Now I am solving this particular type of questions. Evaluate. Likewise, I am solving first question, first part, which is 104 or 107. Clear? So 104 को we can write 100 plus 4, right? और 107 को we can write 100 plus 7. Clear? So फिर से वही x plus a और x plus b. Is it clear? x plus a और x plus b. तो फॉर्मूला क्या था, x स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 4 प्लस 7 x यानी कि 100 और प्लस ab यानी कि 4 इंटू 7. क्लियर? सो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000. 4 प्लस 7 11 इंटू 100 और प्लस 7 4 दिस इज 28. तो कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस 11 इंटू 100 1100 प्लस 28. तो कितना आ जाएगा, दिस इज 8 2 1 1 और 1. इज इट क्लियर? 0 0 8 8 0 0 2 2 0 1 1 and then 0 1 1 and then एक 1 और आ जाएगा आपका. तो ये कितना आ जाएगा, 1 tens 100,000 10,000 1 tens 100,000 10,000. तो ये आ जाएगा आपका सिंपल. सिंपल कर लें आप, ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए. थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में प्रॉब्लम आती है. दिस इज 10,000 1100 28, राइट? तो ये आ जाएगा आपका 8, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 1 और 1. दैट्स इट. तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 8. दिस इज योर आंसर. In this way you can solve this also. 96 को you can write 100 minus 6 और 104 को 100 plus 6, a plus b और a minus b. Likewise ये क्वेश्चन है 96 और 97. तो 96 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 minus 4. क्लियर? और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 100 plus 7. चेक कर लीजिए. अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन बन गया, यानी कि आप 100 प्लस ब्रैकेट में -4 और 100 प्लस 7, यानी कि a के प्लेस पे कितना आएगा, -4 और b के प्लेस पे कितना आएगा, 7. आइडेंटिटी हम सेम यूज करने वाले हैं, x प्लस a और x प्लस b. सो एवरीवन, you have to complete these two questions and with the help of this you are able to solve question number 2 from NCERT. So everyone pause the video and note it down. Thank you. So hello everyone. Now we are solving the next question, question number 4, because question number 3 is very simple. In that you have to factorize. So question number 3 is your homework and I hope so you are able to solve, because मैंने आपको मिड-टर्म स्प्लिटिंग मेथड कल बताया था. With the help of this you can solve these particular questions, right? और कुछ क्वेश्चंस आपके इस वाले एलिमेंट से हो जाएंगे, a square minus b square is equals to a plus b और a minus b से, correct? So now I am solving the question number 4, which is based on your identity number 5, a plus b plus c whole square, which is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Clear? So now first I am solving a very simple part and it's a difficult part जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है. So पहले मैं एक सिंपल पार्ट सॉल्व करता हूँ. Likewise x plus 2y plus 3z होल स्क्वायर. देखिए मैंने कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक से पिक नहीं किया है. क्लियर है? मैं क्वेश्चन सिर्फ अपनी साइड से सॉल्व कर रहा हूँ एंड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर बुक यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है सो यू हैव टू क्लिक द क्वेश्चंस एंड गिव मी अ पिक्चर, मींस मैसेज मी, ओके? एंड आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस. आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ
वीडियो को ध्यान से देखिए, क्लियर। सो नाउ अगर आप कंपेयर करते हैं विद द आइडेंटिटी, ऑन द प्लेस ऑफ ए we have x, on the place of b we have 2y, on the place of c we have 3z, clear। so अगर हम राइट साइड पे जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, राइट, कौन सी, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इज इट क्लियर। सो a को कंपेयर करने पर a के प्लेस पर कितना आता है, x, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 3z होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, यानी कि x स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि 2y होल स्क्वायर, राइट, c स्क्वायर यानी कि 3z होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय a, x और b कितना है 2y प्लस 2b यानी कि 2y और 3z एंड प्लस 2 इंटू ca यानी कि 3z इंटू x, क्लियर। नाउ सॉल्व दिस, x स्क्वायर मीन्स सिंपल x स्क्वायर, 2y होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2 कितना होता है 4, y स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, z स्क्वायर, clear। now 2 to the 4 xy, 2 to the 4, 3 the 12 yz and 2 3 the 6 zx। so in this way you can solve your questions easily, clear। so you have to pause the video means and watch this particular solutions। I don't think so कि आपको समझ नहीं आएगा, clear, आप इजीली समझ पाएंगे। now I'm solving the next part 2, which is somewhere difficult as compared to questions, first questions। so this is your second part, which is x upon 4 minus y upon 2 minus z upon 3। अब आप फिर से कहेंगे सर आइडेंटिटी नेगेटिव वाली नहीं है हमारे पास, तो क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x upon 4 प्लस माइनस y upon 2, राइट, और प्लस माइनस z upon 3 होल स्क्वायर। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे कितना आएगा x upon 2, b के प्लेस पर माइनस y by 2 और c के प्लेस पर माइनस z by 3, क्लियर। सेम थिंग यू हैव रिटन हियर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, दिस वन, क्लियर। so what is the right side, this is a square means x upon 4 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि माइनस y upon 2 होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि माइनस z upon 3 होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस व्हाट इज 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय x upon 4 इंटू माइनस y upon 2 प्लस 2bc यानी कि माइनस y upon 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस z upon 3 और प्लस 2ca यानी कि z upon 3 इंटू x upon 4। इज इट क्लियर। सो बिकॉज स्क्वायर होता है तो न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर का भी होता है, तो x स्क्वायर एज इट इज एंड स्क्वायर ऑफ 4 16 माइनस y का स्क्वायर माइनस y इंटू माइनस y प्लस y स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऑफ 2 4 माइनस z स्क्वायर सिंपल z स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर 9। एंड नाउ वी कैन रिड्यूस देम, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सिंपल, तो कितना आएगा प्लस माइनस माइनस एक्स वाई अपॉन कितना बचेगा सिर्फ 4, अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली पॉजिटिव आएगा, दिस इज वाई जेड अपॉन क्या बचा 3 एंड अगेन you have only one negative value with multiplying with a positive value, so plus minus minus again इसको reduce करेंगे 2 times तो कितना बचेगा zx and 3 to the 6, so this is the answer, x square upon 16 y square upon 4 z square upon 9 minus xy upon 4 plus yz upon 3 and minus zx upon 6. So in this way you can easily solve your question number 4. So everyone pause the video and note it down.
So, hello everyone. Now I am solving question number 5, right, of exercise 2.5. So in this we have factorized. So before starting question number 5, I am solving example number 21 from your book in CRT, right. So in this question you have to factorize, यानी कि इस बार आपको क्या निकालना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. मीन्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बार आपको इस आइडेंटिटी का राइट साइड गिवन है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca फॉर्म गिवन है, और आपको किसमें कन्वर्ट करना है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. क्लियर? बिकॉज इसमें कहीं पर भी क्यूब नहीं है आपके पास. क्लियर? सो इट इज आइडेंटिटी व्हिच इज रिलेटेड टू स्क्वायर. So I am solving example number 21 first, which is very simple. So 4x squared plus y squared plus z squared minus 4xy minus 2yz and plus 4xz. Right? As we know कि 4 जो होता है it is a perfect square. Square of 2 कितना होता है? 4 होता है. तो हम 4 को square of 2 लिख सकते हैं. तो 4x squared को हम लिख सकते हैं 2x whole square. क्लियर? y को y का होल स्क्वायर कर सकते हैं और सिमिलरली z को भी z का होल स्क्वायर कर सकते हैं. नाउ अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर नेगेटिव है और आइडेंटिटी में सारे टर्म्स कैसे हैं आपके, पॉजिटिव है, सभी साइंस कैसे हैं, पॉजिटिव. तो क्या करना है आपको सिर्फ साइन वही लेने हैं जो आपके आइडेंटिटीज में गिवन है, पॉजिटिव. सो प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है, 2x, राइट, और मल्टीप्लाई बाय b कितना है, y, प्लस 2bc यानी कि 2 इंटू y into z, clear, and plus 2 into ca यानी कि z into 2x, clear. अब आपको ऑब्जर्व करना है कौन कौन सी जो टर्म्स हैं आपकी नेगेटिव हैं. तो आपकी यहां पर ये टर्म्स और ये टर्म्स, यानी कि फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म आपकी नेगेटिव, तो यहां से आएगी 1 2 3 4, ये टर्म और ये टर्म दोनों नेगेटिव है. क्लियर? अब इन दोनों टर्म्स में देखो कॉमन टर्म कौन सी है, दोनों में 2 है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, इसको छोड़ दीजिए, बाकी दो बार आइए 2x y और 2x z. क्लियर? तो कॉमन टर्म्स कौन सी है, y. तो जो कॉमन टर्म होगी उसका साइन नेगेटिव होगा. आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, जो टर्म्स कॉमन होगी उसी का साइन आप क्या लेंगे, नेगेटिव, बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी तो प्लस माइनस ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर? तो यानी कि y नहीं है, इट इज माइनस y. मैंने क्या बोला कि जो टर्म्स कॉमन है उसका साइन चेंज होगा, यानी कि वो टर्म आपकी कैसे ली जाएगी, नेगेटिव. तो यहां पर भी आप कैसे लिखेंगे, बिकॉज माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, प्लस वाई स्क्वायर. तो नाउ हमें क्या निकालना था, हमारा जो टारगेट था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. तो a की वैल्यू कितनी है, 2x, b की वैल्यू कितनी है, माइनस y, और c की वैल्यू कितनी है, z. सो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2ca. क्लियर? सॉल्व कर लीजिए. 2 2 4 xy नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस माइनस 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 2yz एंड 2 2 4 x into z यानी कि xz या zx. क्लियर? सो नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca which is equals to a plus b प्लस सी होल स्क्वायर. तो हमने ये सब क्या किया, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी. तो ए के प्लेस पर कितना आ गया, 2x, बी के प्लेस पर कितना आ गया, माइनस y, और सी के प्लेस पर कितना आ गया, z होल स्क्वायर. क्लियर? तो बिकॉज प्लस माइनस माइनस, तो ये कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस y प्लस z होल स्क्वायर. बिकॉज हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो यू हैव टू राइट इट 2 टाइम्स. So 2x minus y plus z or 2x minus y plus z. This is your answer. This is called factors. Getting? So now I am solving second part of question number 5, 2.5 exercise. So this is solution of fifth question, second part, which is 2x squared y squared plus 8z square minus 2 under root 2 xy plus 4 under root 2 yz minus 8xz. ठीक है? इसमें बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको,
because 2 is not a perfect square number. I'm getting 2 is not a perfect square number. 2 किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 2 नहीं आता है. क्लियर? आता है? नेचुरल नंबर्स को तो नहीं आता किसी भी एंगल से, ठीक है, बट इरेशनल नंबर को आता है. मींस अगर हम √2 की मल्टीप्लाई √2 से करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 2, बिकॉज 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, हाफ पावर प्लस हाफ पावर कितनी पावर 1 पावर. तो वही चीज हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं. तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अगेन 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2. क्लियर? 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अगेन 2 आ गया मेरे पास, तो बिकॉज मुझे होल स्क्वायर लिखना है तो 2 का किस नंबर का होल स्क्वायर 2 बनेगा √2 का होल स्क्वायर, बिकॉज √2 into √2 क्या होता है सिंपल 2 होता है. तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 2 अंडर रूट 2, बिकॉज 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 अंडर रूट 2 z होल स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 z स्क्वायर. ए बी सी आ चुके हैं आपके पास. अब सिंपल फॉर्मूला लिखना है आपको, दैट्स इट. क्लियर? 2ab यानी 2a कितना था अंडर रूट 2x, y कितना था सिंपल y था आपके पास. क्लियर? 2ab प्लस 2bc यानी 2y इंटू 2 अंडर रूट 2z प्लस 2ca 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2z इंटू अंडर रूट 2x. हमारा टारगेट क्या था? अब बोलिए सर ये कैसे कन्वर्ट होगा? तो √2 का स्क्वायर 2 होता है x स्क्वायर, y स्क्वायर 2 2 जा 4 2 जा 8 z स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 xy ये आ चुका है. नाउ 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 yz 2 2 जा 4 एंड √2 2 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 xz या zx. अब टर्म्स बात करते हैं कौन कौन सी टर्म आपकी नेगेटिव है. तो यहां पर हमारी एक तो ये वाली टर्म्स नेगेटिव और एक ये वाली टर्म नेगेटिव है. क्लियर है? तो इन दोनों में देखो टर्म्स कॉमन कौन सी है. जो टर्म कॉमन होगी वही आपकी कैसी होगी नेगेटिव. दैट इज अ पार्ट 2ab, ठीक है, एंड दैट इज अ पार्ट 2ca. कह रही कि जो a टर्म्स है दोनों में कॉमन है, तो a टर्म्स कौन सी है मेरी माइनस अंडर रूट 2x, तो ये टर्म्स कैसी होगी आपकी नेगेटिव. क्लियर? तो यही नेगेटिव साइन इंपैक्ट कर रहा है यहां पर, बिकॉज प्लस माइनस 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 प्लस माइनस. क्लियर? तो यानी कि कैसा होगा माइनस. तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2c इसके इक्वल होता है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर. क्लियर? ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर लिखने हैं आप लोग दो वाली सेकेंड्स में माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z and again minus under root 2x plus y plus 2 under root 2z. So this is the answer. I hope so आपको समझ में आ गया होगा. So everyone pause the video and note it down. So hello everyone. Now I am solving question number 6 of exercise 2.5, which is write in expanded form. This is 2x plus 3x plus 2 होल क्यूब. ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन सिंपल लिया और एक क्वेश्चन मैंने फ्रैक्शन बेस्ड लिया है. क्लियर? so from which identity we will solve? So this particular identity question is identity number 6, a plus b whole cube, which is equals to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, and a minus b whole cube, which is equals to a cube minus b cube minus 3a square b or plus 3ab square. Getting? So now first I am solving this part. So this is 3x plus 2 whole cube. तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे कितना है 3x और b के प्लेस पे कितना है 2. तो आप सिंपल लिख सकते हैं by using the identity कौन सी a plus b whole cube is equals to a cube plus b cube plus 3a square b
or plus 3ab square. Clear? Now compare this. On the place of a we have 3x, on the place of b we have 2. तो हमें सिर्फ ये वाली फॉर्म राइट साइड क्रिएट करनी है. क्लियर? लेफ्ट में हमें गिवन है. तो कितना होता है? दिस इज a क्यूब यानी कि 3x होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3x होल स्क्वायर इंटू b और प्लस 3 इंटू a यानी कि 3x इंटू b स्क्वायर. 3 क्यूब कितना होता है? 27. x क्यूब का x क्यूब. 2 क्यूब कितना होता है? 8. 2 2 जा 4 2 जा 8. नाउ प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 3 जा 9x इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. सो दिस इज 27x क्यूब प्लस 8 9 3 जा 27 2 जा 54 x स्क्वायर. क्लियर? और प्लस 9 4 जा 36x. So this is the answer. 27x cube plus 8 plus 54x square and plus 36x. Getting? हमने क्या यूज किया थी? a cube plus b cube plus 3a square b और plus 3ab square. Clear? It is very simple. So this is your answer. Now I'm solving next part. This is second part. In this we have 3x upon 2 minus y upon 3 whole cube. So for this we are solving by using identity number 7, a minus b whole cube. तो a minus a के प्लेस पे कितना है? 3x upon 2 और b के प्लेस पे कितना है? y upon 3 which is equals to a cube minus b cube. तो आपको वही लिखना by using the property और identity. You have to write the identity like this and then solve it. मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ. तो ये कितना हो जाएगा? a cube माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 3x अपॉन 2 होल स्क्वायर इंटू b यानी कि y अपॉन 3. क्लियर? 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर यानी कि y अपॉन 3 होल स्क्वायर. क्लियर? तो सॉल्व करने पर 3 का क्यूब कितना होता है? 27x क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है? 8 माइनस y क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू y अपॉन 3 और प्लस 3 इंटू 3x बाई 2 इंटू y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9. अब देखिए क्या कैंसिल रिड्यूस हो सकती है. इधर तो कोई रिड्यूस नहीं होगा. यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑल दे आर मल्टीप्लाइंग. अगेन 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स. गेटिंग? और कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है. सो फाइनल आंसर वुड बी 27x क्यूब अपॉन 8 माइनस y क्यूब अपॉन 27 माइनस दिस इज 9x स्क्वायर y अपॉन कितना बचा? यहाँ पर से 4 एंड प्लस दिस इज अच्छा हमारे पास एक 3 और भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक, तो कितना बचेगा? सिंपल x y स्क्वायर अपॉन 2. क्लियर? सो दिस इज द आंसर. With the help of this, you can easily solve your question number 6. So everyone pause the video and note it down. So hello everyone. Now I am solving question number 8, right? Because question number 7 is your homework. जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, वहां पर आपको क्या करना था? इवेल्युएट करना था. वहां पर आपको आइडेंटिटी यूज करनी थी a plus b होल स्क्वायर, राइट? या a plus b a minus b या x plus c x plus b या x plus c x minus b. Clear? Same in question number 7, you have to find the value. Likewise, एक डिजिट गिवन है 102 होल क्यूब. तो 102 होल क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? 100 plus 2 होल क्यूब. a के प्लेस पर 100 और b के प्लेस पर 2 यूज करके आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सपेंड करके इसको वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. Clear? By using particular identity. Now I am solving question number 8 in which we are factorized. So from question number 8 I am taking two parts. The first part and the fifth part. Right? तो पहले first part करते हैं which is very simple.
This is 8a cube plus b cube 12a square b plus 6ab square. अब आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, कैसे करना है। तो मतलब इस बार आप क्या निकाल लें, फैक्टर्स निकाल लें। अगर आप ध्यान से देखेंगे आइडेंटिटीज को, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में था, आइडेंटिटी का राइट साइड गिवन था और लेफ्ट में कन्वर्ट करना था, यानी कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन थी और फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे। सेम इज हियर, आइडेंटिटी नंबर 6 और 7 का राइट साइड आपको गिवन है, क्लियर, यानी कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और आपको क्या निकालना है, उसका फैक्टराइज उसको करना है, क्लियर है। सो नाउ एज वी नो कि जो 8 होता है इट इज अ क्यूब ऑफ 2, यानी कि 8 इज अ परफेक्ट क्यूब, क्लियर। तो 2a होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 8a होल क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a होल क्यूब, बिकॉज 2 का क्यूब कितना होता है 8, a क्यूब एज इट इज, लाइक b होल क्यूब। हमारा टारगेट बस ये था कि हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ऑन द प्लेस ऑफ a we have 2a, on the place of b we have b, clear। so now what is the formula, a cube plus b cube 3a square b, यानी 3a square, यानी कि 2a square into b और plus 3 into ab square, यानी कि this। अब चेक कर लीजिए क्या ये ऊपर वाली फॉर्म बन रही है, 2 क्यूब 8 a क्यूब b क्यूब 3, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12 a स्क्वायर b आ जाएगा, 3 2 6 ab स्क्वायर, करेक्ट, क्लियर। हमने इसको पहले क्या किया, ब्रेक कर लिया, तो इसी क्या हुआ, हम इसको आइडेंटिटी फॉर्म में ब्रेक किया। अब इसकी हेल्प से हम इसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। तो a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, यानी कि ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल क्यूब। तो a यानी कितना है 2a प्लस b होल क्यूब। फैक्टराइज करना तो 3 बार लिखेंगे इसको, बिकॉज वी हैव 3 पावर्स, तो 2a प्लस b और 2a प्लस b और 2a plus b. So this is your answer. Now I am solving fifth part, which is 27 p cube minus 1 upon 216 minus 9 by 2 p squared और plus 1 by 4p. अगेन कौन सा साइड गिवन है आपको, आइडेंटिटी की राइट साइड गिवन है, एक्सपेंडेड फॉर्म कन्वर्ट करना है लेफ्ट साइड में, तो आपका टारगेट है a और b क्रिएट करना, क्लियर। तो यहां पर चेक कर लीजिए आप, दिस इज 27 इज अ क्यूब ऑफ 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3p होल क्यूब, राइट। 216 इज अ क्यूब ऑफ 6, क्लियर। 6 6 36 6 216, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर, यानी कि a कितना है 3p होल स्क्वायर इंटू b, b कितना है 1/6। इज इट क्लियर, नाउ प्लस 3ab स्क्वायर 3a कितना है 3p सॉरी और इंटू 1/6। इज इट क्लियर, एनी डाउट, सॉरी इसका स्क्वायर भी है हमारे पास, ठीक है ना, 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये ऊपर वाली फॉर्म मिलेगी, 3 का क्यूब कितना 27p क्यूब 1/6, यानी कि 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216, 3a स्क्वायर, ये कितना आएगा सॉल्व करने पर 9p स्क्वायर, क्लियर। तो जब 3 से इसको कट करेंगे 6 को कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स, क्लियर है। तो 3 2 6, तो 9/2p स्क्वायर, ये ऊपर लिखा हुआ है, क्लियर है। यहां पर कितना आएगा 36, क्लियर, and 3 3 9, 4 36, यानी कि 1/4 सिंपल p आएगा आपके पास। p को थोड़ा साफ लिख लेते हैं, इज इट क्लियर। सो नाउ a क्यूब b क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, किसका आइडेंटिटी होती है a माइनस b होल क्यूब, क्लियर। तो ऑन द प्लेस ऑफ a व्हाट वी हैव 3b और माइनस b के प्लेस पर 1/6 होल क्यूब। तो इसको फिर से वही 3 बार लिखना है, बिकॉज़ वी हैव 3 पावर्स, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 3p minus 1/6, 3p minus 1/6 और 3p minus 1/6. So in this way you can solve questions or question number 8 easily. Clear? So everyone pause the video and note it down. So hello everyone, now I am solving question number 9 of exercise 2.5, which is verify. In this question you have two questions. I am solving one part
and one part is your homework. Similarly, in question number 10 also you have two parts, and you have, I'm solving one part and second part is your homework. Clear? So now solving. So now in this we have to verify. Verify means होता है कि आपको LHS is equals to RHS दिखाना होता है. Clear? So in this x cube plus y cube is equals to x plus y, x square y square minus xy. है क्या ये चीज? ध्यान से देखिए. ये आइडेंटिटी ही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, a plus a cube plus b cube, a plus b, right, and then a square plus b square minus ab. क्लियर है? आपको सिर्फ वेरीफाई करना है. प्रॉपर्टी है तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई तो हो ही जाएगी. सो नाउ फॉर दिस हम इसका कौन साइड लेंगे? राइट साइड. सो टेकिंग RHS. व्हाट इज RHS? x plus y, x square y square minus xy. चेक कर लीजिए, ये बाइनोमियल है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स है. मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल. क्लियर? तो पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे. सो x स्क्वायर y स्क्वायर, मैं बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. प्लस यानी कि पहले x की मल्टीप्लाई इन दिस ब्रैकेट एंड देन y की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में. सो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस xy. मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है? मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? प्लस xy स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स कितना होता है? x स्क्वायर y प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर x स्क्वायर y प्लस y क्यूब y इंटू y स्क्वायर y क्यूब माइनस, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, राइट. सो दिस इज xy स्क्वायर. अब चेक कर लीजिए क्या एक चीज कैंसिल हो सकती है? एक्स स्क्वायर बाय नेगेटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये कैंसिल. एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, व्हिच इज योर LHS. सो इज दैट सिंस LHS is equals to RHS, so it is verified. Very simple. Now we will move to the next question, question number 10. So in question number 10 we have to factorize. Clear? तो चेक कर लीजिए इसमें हमें एग्जैक्टली करना क्या है. क्यूबिक टर्म्स गिवन है आपको, यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 64 इज द क्यूब ऑफ व्हाट? 4. सो 64 को हम लिख सकते हैं 4m whole cube minus 343 is the cube of 7, because 7 7s are 49, 49 7s are 343 and whole cube. ध्यान से देखिए a cube minus b cube, आइडेंटिटी नंबर 7, a cube सॉरी 7 नहीं 9, a cube minus b cube कितना होता है? a minus b and then a square plus b square plus ab. क्लियर? तो वही लिखेंगे by using identity, by using आइडेंटिटी. क्लियर? कौन सी आइडेंटिटी है? a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होता है? a माइनस b देन a स्क्वायर b स्क्वायर और a. इज इट क्लियर? चेक कर लीजिए a की प्लेस पर कितना है? a की प्लेस पर है 4m और b की प्लेस पर कितना है? 7m. तो ये सिंपल कितना हो जाएगा? 4m होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4m माइनस 7n and then a square, यानी कि 4m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7n स्क्वायर और प्लस ab, यानी कि 4m into 7n. Is it clear? And close in a particular bracket because these are the factors. So finally 4m minus 7n in a bracket. 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16n स्क्वायर. 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 n स्क्वायर एंड प्लस 7 4 28 mn. क्लियर? दिस इज योर आंसर. क्लियर? होप सो आपको समझ में आ गया होगा because all the questions are very simple and very easy. So now everyone complete up to question number 10 easily. And if you are finding any problem, I don't think so कि प्रॉब्लम होगी because दो पार्ट थे, एक पार्ट मैंने सॉल्व किया, एक पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं इजीली. So everyone pause the video and note it down. Thank you.